Hi students, very long time I come back again so with new lecture. So in this lectures I am going to explain the some based on student demands, and also it is very important topic for the NEET point of view as well as JEE point of view. So in this topic actually so many students are still struggling how to identify the SN1, SN2. This is SN1, this is SN2. So कैसे distinguish करना है SN1 and SN2 as well as so how to distinguish the elimination and substitution. ठीक है बेटा. So पहले ये lecture में I am going to explain the SN1, SN2 and also some important concept of Williamson-Ether synthesis also, because Williamson-Ether synthesis also is very important for the important named reactions. This is going to be in the NEET point of view as well as JEE main point of view. So please listen properly and so you can understand easily. In the simple trick में I will tell you, so you can easily कर सकता है. ठीक है बेटा. So पहले I already लिखा है इधर. So then we can see the whether it is SN1 SN2 कैसा करना है. Actually पहले going to be SN1 SN2 बोले तो nucleophilic substitution reaction ना. One nucleophile is substituted by another nucleophile. One nucleophile is substituted by another nucleophile is called as a nucleophilic substitution reaction. ठीक है बेटा. So nucleophilic substitution में क्या होता है बेटा, इधर देखो. In general so alkyl, which type of compounds going to be undergo these substitution reactions? Which type of compounds, better tell me, which type of compounds will undergo substitution reaction SN1 SN2? Which chapter? So alkyl halide beta. Yeah? Alkyl halides, alcohols, ethers, so are readily undergo nucleophilic substitution, that is SN1 and SN2 reaction. Okay, so these alkyl halide will undergo elimination reactions also. If it is SN1 SN2 follow करे तो so elimination also possible है, but condition change करे तो be careful in the substitution reaction में compulsory you have to observe the condition. एक condition change करे तो substitution become elimination, elimination become substitution होता है, but you have to see the carefully while doing the exam में compulsory देखना पड़ता है वो condition क्या दिया एक बार देखो. so minute change देता है. If you are not observing properly, substitution product देता है and elimination product देता है. If you not see properly, so we are going to do wrong. देखो बेटा, this is very important concept in the types of reaction में substitution and elimination is one of the compulsory NEET point of view. It is compulsory आता है बेटा, no doubt at all. Elimination and substitution. Last class also elimination बारे में एक दिया था मैं. So that is a फिशर टू न्यूमन प्रोजेक्शन में एंटी एलिमिनेशन ऐसे दिया ना हमें 180 डिग्रीज में लास्ट लेक्चर में. देखो एक बार, दैट इज ऑल्सो एलिमिनेशन बारे में पूछा था. सो दैट इज एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नॉट ओनली नीट, एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, इवन इफ यू टेक अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आल्सो, इवन फर्दर if it is CSR exams and PG graduation exams रहता है ना, वो एग्जाम में also types of reaction is questions compulsory आता है. So that पहले कैसा distinguish करना है you have to see now. ठीक है बेटा. So what we have to going to teach इधर type of compound दिया मैं, type of compound. In this type of compound SN1 and SN2, SN1 and SN2. So in the SN1 SN2 में so I given some compounds. alkyl halide दिया था मैं, क्या दिया? alkyl halide. So methyl halide, primary halides, secondary halides, tertiary halide, allyl halide, benzyl halide, carbonyl methyl halide. देखो carbonyl compound and alkoxy methyl halide and amino methyl halide. देखो बेटा, these compounds maximum suppose question में suppose which of the following undergo SN2 reaction, which of the following undergo SN1 reaction, ऐसा क्वेश्चन अदर देन दिस compound नहीं देता. 100% में श्योरिटी देता हूं. These compounds में मैक्सिमम ये R ग्रुप चेंज करता है, ये R ग्रुप चेंज करता है, बट लेकिन these compounds ओनली देता है if you asking SN1 SN2 क्वेश्चंस alkyl halide में. अदर देन दिस अरेंजमेंट कंपाउंड्स नहीं देता है एग्जाम में. देखो कंपलसरी. लास्ट ईयर आल्सो मेरा नोट्स में एज इट इज क्वेश्चंस आया था.
So notes is very important. So this type of distinguish is very important. Other than compounds SN1, SN2 नहीं पूछते. So compulsory before exam, in NEET exam point of view, compulsory you have to learn this. एक बार, but it is no need to mug up. At least daily अभी लॉकडाउन टाइम में इतना बहुत टाइम मिल गया, which is important time. हर दिन एक बार रिवाइज करो बेटा. Which is important, those are रिवाइज करो. हर दिन कॉन्सेप्ट पढ़ो, टाइम टाइम लगाओ. सो सपोज आप 3 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ने के चांस है. अभी नीट एग्जाम कब जून फर्स्ट वीक में आता है, वी कांट डिसाइड प्रॉपरली अभी. सो अभी आपको अच्छा टाइम मिल रहा है. सो बार बार रिवाइज, डोंट पैनिक. अभी अच्छा टाइम है आपको. सो आपको अच्छा, डोंट पैनिक, रिवाइज करो. मोर टाइम रिवाइज करो तो कितना भी क्वेश्चन टफ आया तो आपको इजीली कर सकता है. सो लैक ऑफ प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग क्वेश्चंस. रॉन्ग क्यों करता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस. सो बार बार मैं 10 क्वेश्चंस करता, 100 क्वेश्चंस करता हूं, ऐसा नहीं है. मैं बहुत प्रैक्टिस कर, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं तो कितने एग्जाम्पल करे तो क्या फायदा. पहले आप क्या करो, सो कॉन्सेप्ट मोर टाइम रिवाइज करो. ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू मेन इंपॉर्टेंट, मोर टाइम्स कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लिखना है. हाथ से नहीं लिखना, आंखों से ऐसे नहीं देखो, हो गया नहीं. यू हैव टू राइट डाउन इन द पेपर एंड पेंसिल. मोर टाइम लिखे तो आपको याद रहता है. वो मेरा आ गया, मुझको आ गया, ऐसा नहीं है. कंपलसरी प्रैक्टिस करना पड़ता है. ओके, मेरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्ट कितना बहुत एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट लेकिन डेली आई एम गिविंग बूस्टर क्वेश्चंस आल्सो. ट्राई टू डू द बूस्टर क्वेश्चंस एंड मेक इट ऑन बुक and write down those booster questions in one book. Then you can do so before exam those booster questions also, it's very helpful because the booster questions में I am trying to give the all type of model questions final exam point of view. मैं एसिडिटी बेसिडिटी बारे में दिया एक बार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दे रहा हूँ, समटाइम्स आइसोमेरिज्म में दे रहा है, समटाइम्स कन्वर्शन दे रहा है, समटाइम टेस्ट दे रहा है, समटाइम बायोमॉलिक्यूल्स में दे रहा है. लाइक दैट ऑल चैप्टर्स कवर कर रहे हैं. देखो बेटा क्वेश्चंस अभी तक मैं बहुत दिया था क्वेश्चंस, डेली बूस्टर क्वेश्चन, ऑर्गेनिक बूस्टर क्वेश्चंस, दोज आर आल्सो वेरी हेल्पफुल आपको. ओके बेटा, सो रेडी कम टू दिस SN1 SN2 बारे में. लेट अस टेक दिस कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड मिथाइल. सो मिथाइल देखो बेटा, पहले आपको SN1 SN2 प्राइमरी रेडीली अंडरगो SN2 बोले SN1 बोले तो मोर स्टेबल कार्बोकेटियन कंपाउंड्स अंडरगो SN1. मोर स्टेबल कार्बोकेटियन क्या? जनरली tertiary is more than secondary. Next one primary generally do not undergo SN1 reactions because unstable carbocation. Which is stable compounds, stable carbocation form करता है वही SN1 में जाता है. Remember करो सर, SN1 is a intermediate is carbocation. SN2 no intermediate, transition state, only single step reaction. SN1 दो step reaction. So reactivity depends upon the intermediate stability. ठीक है बेटा, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी. सो SN1 में कार्बोकेटन स्टेबिलिटी देखना बेटा. प्राइमरी इज अनस्टेबल कार्बोकेटन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN1. सो SN2 बोले तो सिंगल स्टेप रिएक्शन, कार्बोकेटन स्टेबिलिटी नहीं देखना इधर. विच इज लेस क्राउड, लेस प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव, विच इज लेस कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड, दोज आर रेडीली अंडरगो SN2. लेस क्राउड कार्बोनाइल का अल्काइल हैलाइड्स रेडीली अंडरगो SN2. लेस क्राउड alkyl halide SN2, more stable carbocation alkyl halide SN1. simple. That is 2 points mind में रखो distinguish करने. more stable carbocations alkyl halide SN1, less crowd primary, more reactive towards SN2. this is 2 points mind में रखो. ठीक है बेटा. so अभी I am going to explain the type of compound. देखो methyl halide अभी this is will be बताओ SN1 मिथाइल हैलाइड इज कार्बोकेटन स्टेबल है. अभी पता बोला कार्बोकेटन स्टेबिलिटी देखो इधर, सिंपल आई विल राइट इधर. कार्बोकेटन स्टेबिलिटी देखो इधर, लेस क्राउड. इधर यू कैन टेक प्राइमरी सिंपली. इधर वी कैन राइट टर्शियरी. इन जनरली सो मेनी कार्बोकेटन स्टेबिलिटी. सो इधर मिथाइल हैलाइड बोले तो क्या होता बेटा? मिथाइल हैलाइड इट इज SN, हैलोजन निकालो,
एक्स निकालो, एक्स निकालो, एक्स निकालो तो क्या होता, मिथाइल कार्बोकेटन स्टेबल है, एक कार्बन स्टेबल है नहीं ना, सो दैट इट इज नो SN1 नहीं जाता, नो SN1 में नहीं जाता। बट SN2 में क्या होता बेटा, एक ही कार्बन ना, मैं केवल लेस क्राउड, एक कार्बन बोले तो लेस क्राउड ना, बैक से अटैक होता है, लेस क्राउड ना, सो लेस क्राउड वजह से क्या होता बेटा, लेस क्राउड वजह से इट इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड देखो सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी ना, प्राइमरी, प्राइमरी बोले तो SN1 स्टेबल है, स्टेबल नहीं है ना, दैट इज अनस्टेबल कार्बोकेटन फॉर्म होता, प्राइमरी फॉर्म होता, सो प्राइमरी बोले तो इट इज नो। सो इधर SN2 प्राइमरी हो जाएंगे, सो होता है ना प्राइमरी, सो दैट्स व्हाई इट इज गुड, बिकॉज वाई गुड, वेरी गुड से गुड क्यों आ गया, वेरी गुड से गुड क्यों आ गया, इधर एक ही कार्बन और एक कार्बन इंक्रीज हो गया, आर बोले तो कितना कार्बन रह सकते हैं ना, इधर एक कार्बन, बट एक कार्बन बल्कि रहे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएंगे, बैक से अटैक होता है ना, इसीलिए इट इज गुड। देखो नेक्स्ट वन क्या, थर्ड वन सेकेंडरी ना, yes or no, so secondary alkyl halide will undergo stable carbocation when compared with primary, secondary is stable carbocation, so slowly carbocation increase करे तो SN1 में पॉसिबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है बेटा, सो इट इज SN2 SN1 में दोनों में होता है, इट इज यस यस, बिकॉज क्राउड ज्यादा है ना इसीलिए गुड नहीं होता, देखो इधर सेकेंडरी ना, सो दैट्स व्हाई यस यस, दोनों SN1 में SN2 में दोनों भी सेकेंडरी जाएंगे, दोनों भी सेकेंडरी में इन्वॉल्व होता है। इधर टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शियरी इज वेरी गुड, वेरी गुड इन SN1 बिकॉज ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटन्स आर स्टेबल, इसीलिए वेरी गुड। SN2 में क्या होता है बेटा, SN2 में, SN2 इज नो ना, बिकॉज वेरी क्राउड ना, ऐसा नो, वेरी क्राउड ना, देखो ना टर्शियरी क्राउड ज्यादा रहे तो लेस क्राउड, इधर पॉइंट देखो लेस क्राउड, ओके, इट इज नो, इट इज एलाइल, एलाइल बोले तो प्राइमरी बेटा, इट इज प्राइमरी, सो प्राइमरी एंड स्टेबल कार्बोकेटन, एलाइल कार्बोकेटन स्टेबल ना, सो दैट इट इज प्राइमरी लेस क्राउड, सो दैट्स व्हाई यस, बट इट इज गुड। वाई सर आप गुड बोला, वाई, बिकॉज ऑफ प्राइमरी, इधर बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूज हो रहा है, अब बहुत कंफ्यूज हो रहा है, क्यों, प्राइमरी सर कार्बोकेटन स्टेबल है, कार्बोकेटन स्टेबल रहे तो SN1 गुड होना चाहिए ऐसे सोचते हैं, बट इट इज प्राइमरी ना, ध्यान से सुनो लक्षिता, ध्यान से सुनो, इधर प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव SN1 SN2, एक्चुअली SN1 में नहीं होना चाहिए, बट कार्बोकेटन स्टेबल है इसीलिए SN1 आल्सो यस, बट SN2 प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव ना, दैट्स व्हाई इट इज गुड, समझ में आया ना। इधर SN1, इधर सर इधर कार्बोकेट, आपको डाउट क्या आता, सर कार्बोकेटन स्टेबल है ना, स्टेबल रहे तो इसको गुड, इसको यस आना चाहिए, बट प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव इन SN1 और SN2, SN1 और SN2, SN2, so that's why good दिया। and also benzyl, so benzyl का क्या होता है, benzyl, benzyl it is also same allyl वजह से ना, allyl वजह से ना, it is also carbocation से X निकालो, so then what about this is good because of primary, because of primary, primary वजह से, primary, इधर this is what sir electron withdrawing group ना, देखो this is will be electron withdrawing group, सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहे तो क्या होता बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहे तो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहे तो क्या होता, इट इज अनस्टेबल कार्बोकेटन ना, इधर कार्बोकेटन स्टेबल है, दे आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स ना, सो द अनस्टेबल कार्बोकेटन इज SN1 में इन्वॉल्व होता है नहीं होता, सो नो, नो, सो बट इधर SN2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इतना जल्दी हैलोजन जाए तो उतना इजीली रिएक्टिव है, सो इधर ये बॉन्ड ऐसा जाए तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होता, वीक हो जाएंगे ना, वीक रहे तो मोर फास्ट ना, सिंगल स्टेप रहे तो एक्स ऐसा जाए तो न्यूक्लियोफाइल इमीडिएटली अटैक होता, सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वजह से CX बॉन्ड बिकम वीक हो जाएंगे,
बिकॉज ऑफ वीक होने वजह से क्या होता, एक्स जल्दी जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक होता। सो जल्दी अटैक रहे तो इट इज एक्सलेंट, excellent in SN2 beta, excellent in SN2 electron withdrawing group. We suppose which of the following is more reactive towards SN2? Options दिया था primary, secondary and allyl benzyl A दिया था. Which is more excellent electron withdrawing group, even though NO2 group इधर दिया, इधर aldehyde दिया. So electron withdrawing groups different रहे थे. Which is strong electron withdrawing group that will be more reactive. इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कीटोन दिया, सपोज इधर NO2 दिया, NO2CH2 हैलोजन, which is more reactive, NO2CH2 हैलोजन bond, because NO2 is strong electron withdrawing group है. So that this is will be the electron withdrawing group. So that's why it is more excellent in SN2. Why? Because CX bond become weak हो जाएंगे. Because of weak हो जाए तो जल्दी जाएंगे, जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक होता. So no doubt either carbocation unstable, whatever the chance carbocation unstable ना, no doubt it is SN1. No SN1 नहीं रहे तो क्या होता, SN2 ना, ठीक है बेटा. So that's why electron withdrawing group is excellent in SN2. Next one, this is alkoxy. आपको sp3 कार्बन सर, sp3 कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल अटैच करे तो माइनस आई है, बट आप X निकालो, X निकालने के बाद कार्बोकेटन देखो, इधर कार्बोकेटियन को लोन पेयर अटैच करे तो ये क्या होता, प्लस एम होता है ना. ओके समझ में है ना. मैं क्या बोले, एक्स सीरीज फोन sp3 कार्बन को अटैच करे तो लोन पेयर कंटेनिंग करे तो मैं क्या बोला, माइनस आई ग्रुप बोला. सर माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहे तो SN2 में जाना है ना, ऐसा बोलते हैं. बट इधर एक्स निकालने के बाद कार्बोकेटन स्टेबिलिटी देखो, एक्स निकाले तो क्या होता है, एक्स निकाले तो कार्बोकेटन फॉर्म होता है. कार्बोकेटन एक्स सीरीज फोन इज अटैच्ड टू द sp2 कार्बन, दीज आर प्लस एम ग्रुप होता है. इसीलिए पहले एक्स न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो एक्स निकालना है ना, एक्स निकाले तो क्या होता, कार्बोकेटन फॉर्म होता. कार्बोकेटन फॉर्म रहे तो इधर कार्बोकेटन बोले तो sp2 कार्बन ना, sp2 कार्बन रहे तो ऑक्सीजन लोन पेयर क्या होता, प्लस एम होता है ना. प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन ना, मोर स्टेबल कार्बोकेटन more reactive in SN1. So that this is electron releasing group, plus M group directly CH2X को attach करे तो then it is excellent ma, excellent ma, this is excellent. So this is primary na, anyway primary. So इधर कार्बोकेटन फॉर्म नहीं है तो but it is electron withdrawing capacity also रहता है, so that's why it is a primary ना. primary बोले तो good, otherwise yes लिखो, yes. इधर also excellent, it is because of it is also carbocation, it is act as a carbocation form करे तो इधर प्लस सम होता. this is also primary ना, so this is also excellent, excellent. so this is yes primary वजह से primary alkyl. so this will be the differentiation between SN1 and SN2. समझ में है ना. देखो so इधर लॉजिक देखो बेटा, SN2 ऑलमोस्ट एवरी टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ना. यस 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 छोड़ दो, एक्सीलेंट गुड छोड़ दो, बट इन्वॉल्व हो रहा है ना. विच इज देखो एक्सेप्ट टर्शरी रिमाइनिंग ऑल केसेस में SN2 पॉसिबल ना. यस सर नो, एक्सेप्ट SN2 रिमाइनिंग ऑल केसेस पॉसिबल आर नॉट. यस सर नो, पॉसिबल है. so that it will be it is a more remaining case. SN1 में किधर भी रिमेंबर कर, SN2 टर्शरी में इन्वॉल्व नहीं होता, रिमाइनिंग ऑल आर इन्वॉल्व होता है, SN2 में जाएंगे. बट कंडीशन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, बोथ आर पॉसिबल रहे तो क्या देखना, कंडीशन देखना. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1. आल्सो न्यूक्लियोफिलिसिटी बारे में आल्सो मैं बोल दिया एक कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर्स, देखो एक बार. न्यूक्लियोफिलिसिटी, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2. देखो मोस्ट ऑफ द केसेस SN1 SN2 दोनों पॉसिबल ना. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया तो SN2, एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो SN2, DMSO, so DMSO, DMF, acetone like this SN2 solvents, polar
eprotic, SN, acetone, DMF, DMSO. This type of compounds are polar eprotic solvent. Okay, so either SN1 में solvent is itself it is act as a nucleophile, solvent water it is nucleophile वजह से act होता है, protic solvent वजह से act होता है. ठीक है बेटा. So this is about the SN1 SN2 reaction differentiation. समझ में आया ना? So this is will be very important table बेटा before exam. हर दिन एक बार देखो, remember करो easily. मैं बोला था ये remember करो, remaining all cases SN2 excellent. In case of SN1 this is a carbocation still में excellent, which is only excellent electron withdrawing group alkyl halide excellent, electron plus M group containing alkyl halides are excellent in SN1. Okay beta, I hope you understand this concept. Okay beta, so next we will see the some important Williamson ether synthesis and HI cold reaction. This is very important point, is a very important topic ma. So we will see the next lecture में. So Williamson ether synthesis में which reaction SN1 follow होता है, SN2 follow होता है. Williamson ether synthesis also one type of nucleophilic substitution reaction. So what is the conditions? So we will see, and also what is the difference between SN1 SN2 and elimination reactions. So substitution का elimination का difference we will see. Okay, next lecture में. Okay beta, so I hope you understand this. So please read properly, don't panic. So every day you have to read करना, but बहुत time लगता है NEET आने के लिए. So don't forget about news, you have to read every day. ठीक है बेटा. So we are going to next lecture में मिलेंगे. So don't panic ma. Okay, next lecture we will see. ಹಂಗಿನ ಮಾಡಿದ್ನೀಗ